ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے سبق کی طرف. امید ہے کہ آپ نے پہلے سبق کو دہرا لیے ہوں گے، اور اگر کبھی دہرانے والے رہ جائیں کسی مصروفیت کی وجہ سے تو پھر وہ اگلے دن دہرا لیا کریں. اچھا، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، یہاں سے ہم نے سبق پڑھنا ہے آج، اور آیت نمبر ہے 66. لو انا، اور اگر ہم کتابنا لکھ دیتے، کتاب نون الف نا ہم لکھ دیتے، اور کاتبہ ہوتا لکھنا، کاتبہ سے کتابنا، علیہم ان پر، انقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو نہ کرتے وہ یہ کام، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ فعلوا عمل کرتے، ما اس پر کے یوعظون نصیحت کی جاتی ہے انہیں، یوعظون لفظ ہے واز سے، واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، فعلوا لفظ ہے فعل سے، تو فعلوا وہ عمل کرتے، بھی اس کے ساتھ، لکانا تو ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشدہ اور زیادہ، تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا. اچھا، وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ اور اس وقت ہم ضرور دیتے انہیں، مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے، اجرن اجر، عظیماً بہت بڑا اجر، وَلَا ہدیناہم ہم ضرور ہدایت دیتے انہیں صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی، ومن اور جو کوئی، من یطیع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، اور رسولہ اور رسول کی، فاولئک تو یہی، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، نبیین نبی، والصدیقین صدیقوں سے، والشہداء اور شہداء شہید کی جمع شہداء، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے میں. ذالک فضل اللہ، ذالک فضل من اللہ یہی خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ، علیما جاننے والا، اللہ کافی ہے جاننے والا. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی یہ حکم بجا لاتے، اور اگر جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہ صاحب ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے. اللہ خبر دیتا ہے ایسے میں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان منع کردہ کاموں کا بھی حکم دیا جاتا جنہیں اس وقت کر رہے ہیں تو ان کاموں کو بھی نہ کرتے، اس لیے کہ ان کی ذلیل طبیعتیں حکم الہی کی مخالفت پر ہی استوار ہوئی ہیں. یعنی وہ کام جن کو یہ کر رہے ہیں سیدھے کام، اگر ان کو منع کر دے تو وہ یہ بھی نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی خبر دی ہے جو ظاہر نہیں ہوئی لیکن ہوتی تو کس طرح ہوتی، ظاہر نہیں ہوئی لیکن ہوتی تو کس طرح ہوتی. اس آیت کو سن کر ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا تو یقیناً ہم کار گزرتے، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، بے شک میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور ثابت ہے. یہ حدیث ہے، مرسل ضعیف ہے.
لیکن एहसास सहाबा कराम ने करके दिखाया था। तो ये अल्फाज इसके मोतबिर हैं कि उम्मत मोहम्मदिया के लोग कर गुजरते और कर गुजरे भी। गजवा बदर में क्या हुआ था? अपनों को ही मारा था। इरशाद इलाही है कि अगर ये लोग हमारे हकाम को बजा लाते और हमारी मना करदा चीज़ों और कामों से रुक जाते तो इनके हक में इससे बेहतर होता कि हुक्म की मुखालफत करें और ममानत में मशगूल हों। यही अमल ज़्यादा सच्चाई वाला होता। इसके नतीजे में हम इन्हें जन्नत अता फरमाते और दुनिया आखिरत की बेहतर राह की रहनुमाई करते। फिर फरमाता है अल्लाह ताला, जो शख्स अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करे और मना करदा कामों से बाज रहे, इसे अल्लाह ताला इज़्ज़त के घर में ले जाएगा, नबियों का रफ़ीक बनाएगा और सदीकों का जो मर्तबे में नबियों के बाद हैं, फिर शहीदों का, फिर तमाम मोमिनों का जिन्हें साले कहा जाता है, जिनका ज़ाहिर और बातिना रास्ता है। तो ख्याल तो करो कि ये कैसे पाकीज़ा और बेहतरीन रफ़ीक हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। सही बुखारी शरीफ में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था, हर नबी को इसके मर्ज़ुल मौत के ज़माने में दुनिया में रहने और आखिरत में जाने का इख्तियार दिया जाता है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए तो शिद्दत नकाह से उठ नहीं सकते थे, आवाज़ बैठ गई थी। लेकिन मैंने सुना क्या फरमा रहे हैं कि इनका साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और नेकोकार हैं, ये सुनकर मुझे मालूम हो गया कि आपको इख्तियार दिया गया है। तो यही मतलब है। इस दूसरी आयत हदीस में आपके ये अल्फाज भी वारद हुए कि ए अल्लाह, मैं बुलंद व बाला रफ़ीक की रफ़ाकत का तालिब हूँ। ये कलमा आपने 3 मरतबा अपनी ज़ुबान मुबारक से निकाला, फिर दुनिया से चले गए। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। एक हदीस में है कि एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी जान से, अपने अहल अयाल से और अपने बच्चों से भी ज़्यादा महबूब रखता हूँ। मैं घर में रहता हूँ लेकिन शौक़ ज़ियारत मुझे बेकरार कर देता है, सब्र नहीं हो सकता, दौड़ता भागता आता हूँ और दीदार करके चला जाता हूँ। लेकिन जब मुझे आपकी और अपनी मौत याद आती है और इसका यकीन है कि आप जन्नत में नबियों को सबसे बड़े ऊंचे दर्जे में होंगे, तो डर लगता है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से महरूम हो जाऊंगा। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये आयत फिर नाज़िल होगी और आपने उसको सुनाई। इस तरह की और भी कई रवायतें हैं, यानी जिनसे मालूम होता है कि मोमिनीन जो हैं इनको अंबिया का यानी जन्नत में रफ़ीक बनना या अंबिया से मुलाकातें इनको मिलेंगी। सही मुस्लिम शरीफ में है कि रबिया बिन क़ाब असल में फरमाते हैं, मैं रात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहता और पानी वगैरह ला दिया करता था। एक बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, कुछ मांग ले। मैंने कहा, जन्नत में आपकी रफ़ाकत का तालिब हूँ। फरमाया, इसके सिवा और कुछ? मैंने कहा, वही काफ़ी है। आपने फरमाया, मेरी रफ़ाकत के लिए मेरी मदद कर बकसरत सजदे करके, यानी सजदे ज़्यादा करोगे तो मेरी रफ़ाकत मिल जाएगी। जिसका मतलब ये है कि नेकोकारों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत मिलेगी, कुर्बत यानी कुर्बत हमसायगी मिलेगी। तिरमिज़ी की हदीस में है, सच्चा ईमानदार ताजर नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। इन सब से ज़्यादा ज़बरदस्त बिशारत इस हदीस में भी है, जो सियाह और मसानीद वगैरह में सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की एक ज़बरदस्त जमात से बतवातर मरवी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया जो एक कौम से मोहब्बत रखता है लेकिन इससे मिला नहीं। तो आपने फरमाया, अलमरउ मआ मन अहब्बा, हर इंसान इसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता था। तो हजरत तंस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुसलमान जिस कदर इस हदीस से खुश हुए इतना किसी और चीज से खुश नहीं हुए। उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। और मोहब्बत का असूल क्या है? ये मोहब्बत की रट तो हर किसी ने लगाई हुई है। हर कोई कहता है मैं आशिक रसूल हैं, गुलाम है, गुलाम के नबी के हम गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और भी बड़े बड़े नारे और ये स्लोगन बने हुए हैं। तो ये असूल क्या है मोहब्बत का? ये नारे लगाने और ये सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी होगा ये?
तो ज़ुबान से तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी ऊंची है। इस्लाम ने एक असूल दिया है और कुरान ने भी एक असूल दिया है। अच्छा, कुरान ने क्या असूल दिया? मन युतिउल्लाह व रसूलह फउलाइका मुअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। आगे फिर जिन नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का जिक्र आता है। तो पहली चीज क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, वही लोग होंगे इनाम याफ्ता जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। यानी ये ज़बानी कलामी, ये दावे, ये सारे झूठे हैं। अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। जो अताअत करेगा उसी के ऊपर इनाम होगा, दूसरे के ऊपर नहीं होगा। आज हमारे अंदर अताअत नहीं है, मुसलमानों के अंदर आज अताअत नहीं है, नारेबाजियां हैं। हम ये ना एक जगह पे ना लड़ाई हो गई, ये नई नई कॉलोनी बन रही थी वहाँ। तो कॉलोनी जब वो बनाई गई ना, उसके अहाते वगैरह काट दिए जाते हैं जब, तो मस्जिद की जगह भी रखी गई। कोई एक उठा तो उसने वो मस्जिद कोई जगह जो है वो उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया है। मोहल्ले वालों ने कहा कि ये मस्जिद की जगह है तो इसके ऊपर घर ना बनाओ। उसने कहा कि नहीं, सरकारी जगह है तो सब भी जो है वो ले रहे हैं, तो मैंने भी, उसने बना लिया मकान या शुरू कर लिया। अब कुछ लोग जो है वो एक दूसरे को जो है वो कहा कि अब इसके साथ लड़ाई करें। लेकिन लड़ाई का जब टाइम आया तो जिसके हाथ से उसको चोट लग गई, यानी वो चोट तो एक हाथ से ही लगी, तो बाकी जो पीछे थे तो जिसके हाथ से चोट लग गई वो दोनों भाई जो है वो जेल में आ गए। चोट क्या लगी कि उसके हाथ में छुरी थी, वो कसाई का काम कर रहा था। उसी तरह शोर शराबा जब शुरू हुए तो वही छुरा उसके हाथ में था, वही उसने खोप दिया और वही उसके टकाने लग गया और बंदा उसी जगह पे टकाने लग गया। ये हमारे आंखों देखा वाकया है। अच्छा, अब सजा होगी दोनों को, दोनों भाइयों को सजा हो गई। एक ही घर के दोनों भाई एक ही जगह पे जो बैठे थे और वही फिर आगे बढ़े और बाकी जो है वो सारे छूट छटा गए। अच्छा, उसके बाद फिर चलो उनके साथ सुलह की, रकम दी, पैसे दिए, मिन्नतें की, चलो सुलह कर ली उन्होंने। वो जेल से निकल आए। उसके बाद मस्जिद बन गई। मस्जिद तो बन गई लेकिन हाल कोई भी नहीं, नमाज पढ़ने वाला कोई भी नहीं। तो हम मस्जिदों के लिए तो लड़ते हैं लेकिन मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। हम इस्लाम के लिए तो लड़ते हैं लेकिन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते। हम मुसलमान होना तो बड़े फख्र से जताते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस मुसलमानी है ही नहीं, इस्लाम है नहीं। मुसलमान का माने क्या है? फरमाबरदार। फरमाबरदारी किसकी? अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की। वो चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं। जब अताअत नहीं होगी तो मोहब्बतें बेकार हैं। आपने कभी देखा एक घर के अंदर, कई खवातीन से मैंने इस तरह की बात सुनी कि इज्जत है, मोहब्बतें हैं एक दूसरे से, लेकिन वो कहती है ये मेरी बात नहीं मानता, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, मुझे नफरत है इससे। घर में काम भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, लेकिन नफरतें हैं। नफरतें किस चीज़ की हैं? ये मेरी बात नहीं मानता। तो कहना मानना मोहब्बत है। ये दुनिया के असूल भी हैं और अल्लाह के असूल भी हैं। कहना मानना मोहब्बत है। अगर कहना नहीं मानेंगे तो ज़बानी कलामी मोहब्बतें नहीं हैं। मोहब्बतें ये झूठी हैं, बस फजूल और ये लग़वियात हैं बस। अच्छा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, वल्लाह मेरी मोहब्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से है, हज़रत उमर फारूक से है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे भी इन्हीं के साथ उठाएगा, गो मेरे अमाल इन जैसे नहीं। अल्लाह तो हमारे दिल भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वालों की मोहब्बत से भर दे और हमारा हशर भी इन्हीं के साथ कर दे, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती लोग अपने से बुलंद दर्जा वाले जन्नतियों को इनके बाला खानों में इस तरह देखेंगे जैसे तुम चमकते सितारे को मशरिक या मगरब में देखते हो। इनमें बहुत कुछ फासला होगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने
انہوں نے کہا کہ یہ منزلیں تو انبیاء کے لیے ہی مخصوص ہوں گی، کوئی اور وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان ہے، رسولوں کو سچا ماننا اور جانا، ماننا بھی اور جاننا بھی، یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ اور مسلمان صرف مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے اور اس طرح کے یہ جھوٹے دعووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ آگے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک حبشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو وہ اور سمجھو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسولو، آپ کو صورت میں، رنگ میں، نبوت میں اللہ عز و جل نے یہاں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور ان احکام کو بجا لاؤں جنہیں آپ بجا لا رہے ہیں، تو کیا جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی حبشی تو ایسا گورا چٹا ہو کر جنت میں جائے گا کہ اس کا جسم 1000 برس کے فاصلے سے ہی نورانیت کے ساتھ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے لیے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک اور صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حقائق ہیں تو پھر ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک انسان قیامت کے دن اس قدر اعمال لے کر آئے گا اگر کسی پہاڑ پر رکھے جائیں تو وہ بھی بھوجل ہوئے، لیکن ایک نعمت جو کھڑی ہوگی محض اس کے شکریہ میں یہ اعمال کم نظر آئیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے ڈھانک لے اور جنت دے دے، اور یہ آیتیں اتریں حل عطا علی الانسان سے ملکن کبیرہ تک، یعنی تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہیں، اپنے اوپر کبھی لگایا کریں حساب۔ مثلا اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں اور دوسرا بندہ ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اور وہ بندہ کہے کہ تو ایک آنکھ مجھے دے دے، تو وہ دے دے گا اسے 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 10 لاکھ میں؟ دے گا ہی نہیں، دے گا ہی نہیں، جتنے مرضی لاکھ لگا دیں آپ، وہ آنکھ آپ کو دے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ دنیا کے مول سے کہیں زیادہ اس کا مول ہے۔ دنیا کے جتنے مرضی ڈالر آپ اس کے عوض ڈالتے جائیں، جتنے مرضی رقم اس کے عوض ڈالتے جائیں، اس کا مول ہی جو ہے وہ گنتی سے ہی زیادہ ہے، سمجھ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو چیزیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ انمول، جن کا کوئی مول ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص اللہ کا عنایت اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت سے ہی جی اس کے قابل ہوئے، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اسے وہ خوبی معلوم ہے مستحق ہدایت کون ہے، توفیق جو ہے توفیق ہدایت کون ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ جاننے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذرکم اپنا بچاؤ کا، اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی جو اسلحہ وغیرہ ساتھ جو ہوتا ہے، یا پھر جانور یا سواریاں وغیرہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ فنفرو پس نکلو، صباتن دستوں کی صورت میں، اب انفرو اور جا پھر نکلو، جمیعاً اکٹھے ہو کر۔ دستوں کی صورت میں یعنی تھوڑے تھوڑے گروہوں کی صورت میں نکلو تو بھی ٹھیک ہے، اور اکٹھے نکلو تو بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے، لمن وہ جو، لا یبطئن ہر صورت دیر لگا دے گا، فائن پھر اگر اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت تو کہے گا قالا قد بلا شبہ انا واللہ اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، وائز
इज जब लम अकुम माहुम मैं नहीं था इनके साथ शहीदा मौजूद। यहाँ शहीद का मानी मौजूद है। शहीद का मानी मौजूद भी होता है, गवाह भी होता है, और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला वो भी शहीद होते हैं। वालाइन और बिला शुबा अगर असाबकुम पहुंचा तुम्हें फजलुम मिनल्लाही कोई फजल अल्लाह की तरफ से ला यकूलन्ना तो यकीनन वो जरूर कहेगा कि अल्लाह तकुम गोया कि नहीं थी बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनहु और इसके दरमियान मवद्दतुन कोई दोस्ती। या लैतानी काश के कुंतु मैं होता माहम इनके साथ फाफूजा तो कामयाबी हासिल करता फौजन अजीमा बहुत बड़ी कामयाबी। फल जो कातिल पास लाजम है कि लड़ाई करें, लड़ें फिसबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह जीना वो लोग जो यशरूना बेचते हैं हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी बिल आखिरती आखरत के मुकाबले में। वमन जो कातिल और जो कोई लड़े फिसबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में फायुक्तल फिर वो कत्ल कर दिया जाए और यगलिब या गालिब आ जाए फसौफा तो जल्द ही नुती ही हम इसे देंगे अजरन अजीमा बहुत बड़ा अजर। मुसलमानों तुमने अपनी तैयारी रखनी है, कुफर के साथ मुकाबले के लिए तैयार होकर रहना है, ताकतवर और मुत्तहिद होकर जिंदा रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को हुक्म देता है हर वक्त अपने बचाव का सबब तैयार रखें और हर वक्त हथियारबंद रहें ताकि दुश्मन इन पर बआसानी कामयाब ना हो सके। और जरूरत के हथियार भी तैयार रखें, अपनी तादाद भी बढ़ाते रहें, कुव्वत मजबूत करते रहें। मुनज़्ज़म मर्दाना वार जिहाद के लिए बेशक वक्त बेशक आवाज उठ खड़े हों। छोटे छोटे लश्करों में बटकर भी इस तरीके से भी जिहाद ठीक है, जिस तरह ये गुरीला जंग होती है, गुरीला जंग इसी तरह ही होती है। तो जो गुरीला जंग से ही अफगानिस्तान ने जो शिकस्त दी है अमेरिका को, गुरीला जंग से दी है। 4-4 2-2 4-4 6-6 की 8-8 की टोलियों में बट के वो बैठ रहते थे घात लगा के, और यूं ही इनकी कोई गाड़ी इस तरह का कोई आया तो इनके ऊपर हमला कर दिया, यकबारगी उड़ा दिया इनको। तो ये छोटी छोटी टोलियों में बटकर भी कामयाब रहता है जिहाद। मुतहद्दा फौज की सूरत में भी जैसा मौका हो आवाज़ सुनते ही जो है वो कुछ बोल दें। मुनाफिकीन की खसलत है कि खुद भी अल्लाह ताला की राह से जी चुराएं और दूसरों का भी बुज़दिल बनाएं। जैसे अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था जो सरदार मुनाफिकीन का था, उसका जो फेल था कि अल्लाह ताला इसे रसवा करे। इसका किरदार ये था कि अगर हिकमत इलाहिया से मुसलमानों को दुश्मनों के मुकाबला में कामयाबी ना होती, दुश्मन इन पर छा जाता। अच्छा, आप देखें कि हमेशा ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबियां नहीं दी कि मुसलमान इसके ऊपर एक इत्तेफाक करके ना बैठ रहे हैं कि हमें कामयाबियां तो मिलनी है, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ औक़ात शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, बाज़ औक़ात हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा इनको। और वो आज के मुजाहिदीन के लिए दर्स है ये कि अगर तुम्हें नाकामियां हुई हैं तो ये नहीं समझना कि अल्लाह तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अगर इनको कामयाबी ना होती, दुश्मन इन पर छा जाता, इन्हें नुकसान पहुंचाता, इनके आदमी शहीद होते, तो ये घर बैठा बड़ी खुशियां मनाता और अपनी दनाई पर बड़ा अकड़ता और अपना इस जिहाद में शरीक ना होना अपने हक में अल्लाह ताला का बड़ा इनाम करार देता। लेकिन इसको ये खबर नहीं थी कि जो अजर सवाब इन मुजाहिदीन को मिला, इस सब से ये बदनसीब यकलख्ती महरूम रहा। अगर ये भी इनमें शामिल होता तो गाजी का दर्जा पाता, अपने सब्र के सवाब समेटता या शहादत के बुलंद मर्तबे तक पहुंच जाता। लेकिन गैर मोमिन को अपनी जान बड़ी अजीज होती है, ये अपनी जान को बचाता रहता है। अभी कल मैंने पढ़ा था, स्टेटस किसी का लगा हुआ था कि कब्रें मैंने उन लोगों को भी देखी हैं जो अपने हक के लिए भी ना लड़े कि हम मारे ना जाएं, वो भी कब्रों में पड़े हुए हैं। अगर मुसलमान मुजाहिदीन को अल्लाह का फजल मावन होता, यानी ये दुश्मन पर गालिब आ जाते, इनकी फतह होती, दुश्मनों को इन्होंने पामाल किया, माल गनीमत मिला, लौंडियों का लाम लेकर आए, खैर आफत के साथ आए, नुसरत के साथ आए,
तुझे अंगारों पे लौटता, ऐसे लंबे लंबे सांस लेकर हाय वाय करते इस तरह पछताता और ऐसे कलमात जुबान से निकालता कि गोया ये तुम्हारा कभी था ही नहीं, ये दीन तुम्हारा नहीं बल्कि इसका दीन है। और कहता अफसोस मैं इसके साथ ना हुआ और ना मुझे भी वरना हिस्सा मिलता, मैं भी लौंडियां गुलाम अमाल मता लेके वापस आता। अलगत दुनिया पर रिझा हुआ है और इसी पर मार बिटा हुआ है। बस अल्लाह ताला की राह में निकल खड़े होने वाले मोमिनों को चाहिए इनसे जिहाद करें और अपने दीन को दुनिया के बदले फरोख्त कर रहे हैं। जो अपने दीन को फरोख्त कर रहे हैं अपने कुफर और अदम ईमान के बायस अपनी आखिरत को बर्बाद करके दुनिया बनाते हैं। सुनो, अल्लाह की राह का मुजाहिद कभी नुकसान नहीं उठाता, इनके दोनों हाथों में खैर ही खैर है। दोनों हाथों में लड्डू पकड़े हुए हैं इसने, कत्ल हो गया तो अजर और अगर गालब आ गया तो भी अजर, दोनों तरीकों से अजर हाजिर है उसके पास। बुखारी मुस्लिम है कि अल्लाह की राह के मुजाहिद का जामन खुद अल्लाह ताला है, या तो इसे फौत करके जन्नत में पहुंचाएगा या जिस जगह से वो चला है वहीं अजर की नीमत के साथ सही सालम वापस आएगा। तो आज भी मुजाहिदीन की मददें आज भी होती हैं। अल्लाह ताला आज भी मुजाहिदीन की मददें फरमाता है। जहाँ जहाँ मुजाहिदीन डटे हुए हैं अल्लाह के रास्ते में इस्लाम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल का बोलबाला करने के लिए जहाँ जहाँ डटे हुए हैं अल्लाह आज भी उनकी मददें फरमाते हैं। और खुद इन मुजाहिदीन ने मददें अपनी आंखों से देखी, अपनी कानों से सुनी और ये आके सुनाते हैं अपनी बातें कि हमारी किस किस जगह पे मददें हुई। और इनको छोड़ें आप, कुरान पाक के अंदर आपने पीछे पढ़ा ना गज़वा बदर के बारे में, गज़वा उहद के बारे में कितनी अल्लाह ताला की मददें पहुंची। फतह मक्का के दिन कितनी बड़ी मदद पहुंची कि बगैर लड़ाई के फतह हो गया। जो जानी नुकसान हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत कोई गिनती के कुछ लोग जो है वो इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था जितना बड़ा काम हो गया था। आज भी अल्लाह की मददें हम सब के साथ हैं, जरूरी नहीं कि मुजाहिदीन के साथ ही। आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी के घर में कोई डाका वगैरह पड़ गया है तो अगर घर वालों ने जुर्रत की, दिलेरी की तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का जो है वो उन्होंने मुकाबला कर लिया। तो जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता, जब हम अपनी जान को अजीज करते हैं तो फिर तो ये नकम्मे लोगों को सामने जी जी करना ही है कि हमें कहीं मौत ना आ जाए, हमें कहीं खराश ना आ जाए। तो जब आपने पीछे को होना तो अल्लाह की मददें फिर नहीं आएगी। अल्लाह की मददें तब आएंगी जब अपने आप को आप तोल देंगे कि अब मैंने अपने आप को तोल दिया है अल्लाह, अब तू मेरी मदद फरमा, फिर अल्लाह ताला की मददें आती हैं। चलो फिर आगे चलते हैं।